हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अवर फेस्टिवल्स लेसन 6। इस लेसन को पहले हम रीड करते हैं, फिर इसका मीनिंग समझते हैं। इस लेसन में दो दोस्त के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है जो कि एक लेटर के थ्रू हो रही है। मतलब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो बताता है कि उसने अपने जो फेस्टिवल्स हैं, जो दिवाली का और ईद का फेस्टिवल कैसे मनाया, और दूसरा जो दोस्त है वो उस लेटर को पढ़ के अपनी माँ को सुनाता है तो ये फेस्टिवल्स के बारे में, लेकिन इसमें हमको सीखने के लिए मिलेगा कि हम लेटर किस तरह से लिखते हैं और हम किसी चिट्ठी में अपनी भावनाएं कैसे लिखते हैं। तो लेटर लिखना हमें ज़रूर आना चाहिए और उसके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट? फेस्टिवल का अर्थ होता है त्योहार। आपको कौन सा त्योहार सबसे ज़्यादा पसंद है? What do we do on a festival? हम त्योहार पे क्या करते हैं? How do we celebrate them? हम कैसे त्योहार मनाते हैं? It is the month of November. Satish has just come from his school. Satish, Mother, give me something to eat. My friends are waiting for me at play. Mother, be comfortable, wash your hands and come. Satish, Mother, what's there in your hands? Satish washes his hands and takes lunch. Mother, I have got a letter for you. Satish, Ma, who has sent it? Have you read it? Mother, it is from your friend Gautam. I have not opened it yet. Satish, why? Mother, because it is a bad manners to open others' letter. I want you to read and tell me what is there. Satish opens the letter and reads it. It reads like this: 172 Narmada Marg, Saket Nagar, Dewas, MP, 30 अक्टूबर 2008। ये एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब जिसको ये लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस। Dear Satish, I am happy and well here. This is in response to your recent letter in which you wanted to get a detailed account of Diwali and Eid celebrations. As you know, India is a land of festivals. Diwali is one of them. We celebrate it in the month of Kartik. It is celebrated to recall Lord Ram's return to Ayodhya after his victory over Ravan. We got our houses whitewashed and decorated with earthen lamps and electric bulbs. My mother prepared sweets. In the night of Amavasya, I celebrated the festival with my parents, grandparents, and younger sister Pooja. Everyone put on new clothes. We worshipped the goddess Lakshmi. Then sweets were distributed. We ate sweets and let off fireworks. Really, it was a great experience. I hope you would have also enjoyed the festival of lights and happiness. Eid is another festival of happiness and brotherhood. My friend Anis told me that people observe fast and pray the Almighty during the month of Ramzan. At the end of this pious month, Eid is celebrated. People assemble in the Eidgah and offer prayers to the Almighty. Everybody puts on new clothes. They say Eid Mubarak and hug one another. Special sevai and sweets are served to guests and visitors. Now the festive season is over. Our half yearly exams are ahead. Before I conclude, I tell you one thing. I have written a letter to my friend John to tell us how he enjoyed Christmas last year. Please convey my regards to uncle and aunt and love to little Chinky. Your friend Gautam Rajoria. This is how he reads the letter. Mother, that is very nice. Whenever you write a letter to him, convey my love and blessings.
Satish, Ma, may I go out to play now? My friends are waiting for me. Mother, wait. I have also prepared these sweets for you. First have them and then you can go. But don't be late. As your exams are ahead, you should concentrate on your studies. Satish takes the sweets and rushes to the playground. It is the month of November. Satish has just come from his school. नवंबर का महीना था. सतीश स्कूल से बस वापस आया. उसके बाद की ये कॉन्वर्सेशन है. Satish, mother, give me something to eat. My friends are waiting for me at play. वो अपनी माँ से सतीश कहता है कि माँ मुझे कुछ खाने को दो. मेरे दोस्त खेलने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं. Mother, be comfortable. Wash your hands and come. कंफर्टेबल मतलब थोड़ा सहज हो जाओ या निश्चिंत हो जाओ. तो वो कहती है कि थोड़ा आराम करो. वॉश योर हैंड्स एंड कम. हाथ धोकर आओ. सतीश, मदर, व्हाट इज देयर इन योर हैंड्स? सतीश वॉशेस हिज हैंड्स एंड टेक्स लंच. तो सतीश हाथ धोता है और खाना लेता है. साथ में माँ से पूछता है कि आपके हाथ में क्या है. मदर, आई हैव गॉट अ लेटर फॉर यू. मदर बताती है कि उनके पास एक लेटर है सतीश के लिए. सतीश, माँ, हु हैज सेंट इट? हैव यू रेड इट? वो माँ से पूछता है कि वो किसने भेजा है, क्या आपने पढ़ा? मदर, इट इज फ्रॉम योर फ्रेंड गौतम. आई हैव नॉट ओपनड इट येट. ये तुम्हारे फ्रेंड गौतम ने भेजा है और मैंने अभी से नहीं खोला. सतीश, वाई, क्यों नहीं खोला? मदर, बिकॉज इट इज बैड मैनर्स टू ओपन अदर्स लेटर. आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी व्हाट इज देयर. तो माँ कहती है इट इज बैड मैनर्स. बैड मैनर्स का मतलब होता है असभ्यता या अशिष्टता या गंदी बात होती है. माँ उसे बताती है कि किसी दूसरे का लेटर खोल के पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है. ये अशिष्टता कहलाती है. आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी व्हाट इज देयर. मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या है. सतीश ओपन्स द लेटर एंड रीड्स इट. सतीश अपनी चिट्ठी खोलता है और पढ़ता है. इट रीड्स लाइक दिस. और उसमें यह लिखा रहता है. पहले तो एड्रेस लिखा है, फिर डियर सतीश, आई एम हैप्पी एंड वेल हेयर. मैं यहाँ खुश और ठीक हूँ. दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर रिसेंट लेटर इन विच यू वांटेड टू गेट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशंस. तो वो बताते हैं कि ये चिट्ठी मैंने तुम्हारी चिट्ठी के जवाब में लिख रहा हूँ जिसमें तुमने पूछा था कि दिवाली और ईद तुमने कैसे मनाया, अच्छे से बताना. एज यू नो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. जैसा कि तुम जानते हो कि हमारा देश भारत त्योहारों का देश है. दिवाली इज वन ऑफ देम. दिवाली उसमें से एक त्योहार है. वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक. हम कार्तिक के महीने में दिवाली मनाते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण. जब भगवान राम रावण से युद्ध में जीतकर अयोध्या वापस आए थे, उसी उपलक्ष्य पे ये मनाई जाती है. We got our houses whitewashed and decorated with earthen lamps and electric bulbs. हम अपने घर वाइट वॉश मतलब पुताई पेंट करवाना पुताई करवाना. तो हम अपने घर की पुताई करवाते हैं. उसको अर्दन अर्दन लैम्प्स मतलब मिट्टी के जो दिए होते हैं उसको अर्दन लैम्प कहते हैं. तो हम मिट्टी के दियों से सजाते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब और लाइट से सजाते हैं. माई मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स. मेरी माँ ने मिठाइयाँ बनाई. इन द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस की रात को, आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर पूजा. मैंने अमावस्या की रात को दिवाली अपने माता पिता, अपने दादा दादी और अपनी बहन के साथ मनाई. एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लोथ्स. सभी ने नए कपड़े पहने. वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी. हमने देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की. देन स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड. और फिर मिठाइयाँ बांटी. वी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायरवर्क्स. हमने मिठाइयाँ खाई और पटाखे जलाए. रियली इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सच में ये बहुत ही अच्छा अनुभव था. आई होप यू वुड ऑल्सो एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस.
और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी इस रोशनी का और खुशियों के त्योहार का आनंद लिया होगा। ईद इज अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड, खुशी और भाईचारे का। My friend Anis told me that people observe fast and pray the Almighty during the month of Ramzan. मेरे दोस्त अनीस ने बताया कि रमज़ान के महीने में सभी लोग फास्ट रखते हैं, मतलब व्रत रखते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पायस मंथ ईद इज सेलिब्रेटेड, और इस महीने के आखिर में ईद मनाई जाती है। पीपल असेंबल इन द ईदगाह एंड ऑफर प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी। सभी लोग ईदगाह में इकट्ठा होते हैं और साथ में दुआ करते हैं। एवरीबॉडी पुट्स अ न्यू क्लोथ्स, सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक एंड हग वन अनदर, वो एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और गले मिलते हैं। स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्व टू गेस्ट्स एंड विजिटर्स, खास सेवई बनाई जाती है और मिठाइयाँ मेहमानों और घर आने वालों को दी जाती हैं। नाउ द फेस्टिवल सीजन इज ओवर, अब सारे त्योहार खत्म हो गए। अवर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अहेड, हमारे हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा, हमारे हाफ ईयरली परीक्षा शुरू होने वाली है। बिफोर आई कंक्लूड आई टेल यू वन थिंग, इस लेटर को कंक्लूड मतलब खत्म करना, समाप्त करना, मतलब इस चिट्ठी को समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड जॉन टू टेल अस हाउ ही इंजॉयड क्रिसमस लास्ट ईयर। मैंने जॉन को भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें उससे मैंने कहा कि वो बताए कि उसने पिछले साल क्रिसमस कैसे मनाया। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू लिटिल चिंकी, मेरा प्रणाम अंकल आंटी को कहना और चिंकी को स्नेह। योर फ्रेंड गौतम रजोरिया, तुम्हारा दोस्त गौतम रजोरिया। दिस इज हाउ ही रीड्स द लेटर, इस तरह से वो अपनी चिट्ठी पढ़ता है। मदर, that is very nice. Whenever you write a letter to him, convey my love and blessings. तो मदर वो चिट्ठी सुन के कहती हैं कि ये बहुत ही अच्छी चिट्ठी है और जब भी तुम उसको चिट्ठी लिखोगे तो मेरा प्यार और आशीर्वाद भी उसे देना। सतीश, माँ, may I go out to play now? My friends are waiting for me. फिर सतीश अपनी माँ से पूछता है कि क्या मैं अब खेलने जा सकता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। Mother, wait, I have also prepared these sweets for you. First have them and then you can go. माँ कहती है कि रुको, मैंने ये मिठाइयाँ तुम्हारे लिए भी बनाई हैं, पहले इसको खाओ फिर तुम जा सकते हो। But don't be late, as your exams are ahead. You should concentrate on your studies. कहती हैं पर तुम देर नहीं करना क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं और तुम्हें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सतीश takes the sweets and rushes to the playground. सतीश मिठाइयाँ लेता है और खेल के मैदान में भाग जाता है। यहाँ तक आपको ये लेटर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने देखा कि किस तरह से हम अपनी भावनाएं, अपने मन की बात चिट्ठी में लिख के अपने दोस्तों को बता सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।